Praise the Lord. Praise the Lord. Jai Masih. Jai Masih. As we have gathered here to this Sunday service today, I would like to read one verse. As a verse in Lamentation 3, it says, "The Lord is good to those whose hope is in Him. To the one who seeks Him, it is good to wait quietly for the salvation of the Lord." जो यहोवा की बाट जोते और उसके पास जाते हैं, उनके लिए यहोवा भला है। यहोवा से उधार पाने की आशा रखकर चुपचाप रहना भला है। We all know, हम सब जानते हैं, God is good all the time. यीशु अच्छा है हमेशा। तो जैसा हम ये गीत गाते हैं, तो क्यों ना हम पहले स्तुति आराधना में जाने से पहले हम प्रार्थना करेंगे, प्रभु से ये प्रार्थना करें कि प्रभु हमें मदद करे कि हम उसकी स्तुति आराधना एकदम सच्चाई से और आत्मा से करें। तो क्यों ना हम एक साथ मिलकर हम प्रार्थना करें पहले। Yes, Lord Father, we thank you for this beautiful day you've given us, Lord Father. As you have gathered here today in this place of worship, help us to lift up your name today. Help us, Lord Father, that we should worship you in spirit and in truth. हाँ प्रभु जी, हमें मदद कर कि प्रभु जी तेरी स्तुति, तेरी आराधना प्रभु जी हम सच्चाई से और आत्मा से करें प्रभु जी। जैसा हम जानते हैं कि तू एक भला परमेश्वर है, तू एक अच्छा और सच्चा परमेश्वर है प्रभु जी। हमें मदद कर कि हम तेरी आराधना, तेरी स्तुति प्रभु नाचते हुए गाते हुए प्रभु जी तेरी महिमा हम करते रहे प्रभु जी। आगे समय प्रभु जी तेरे चरणों में हम देते हैं, तू ले, तू हमें अगुवाई कर, तेरे मीठे नाम से हम मांगते हैं, आमीन। फिर से जय मसीह। तो क्यों ना हम एक साथ मिलकर हमें गीत गाए, गॉड इज गुड ऑल द टाइम। God is good all the time. He put a song of praise in this heart of mine. God is good all the time. Through the darkest night, His light will shine. God is good. God is good all the time. If you're walking through the valley and there are shadows all around, do not fear. He will guide you. He will keep you safe and sound. God has promised to never leave you nor forsake you, and His word is true. God is good all the time. He put a song of praise in this heart of mine. God is good all the time. Through the darkest night, His light will shine. God is good. God is good all the time. We were sinners. We were sinners, so unworthy. Just for us He chose to die. Fill us with His Holy Spirit. Now we can stand and testify. And His mercy is everlasting. And His mercy, they will never end. God is good all the time. He put a song of praise in this heart of mine. God is good all the time. Through the darkest night, His light will shine. God is good. God is good all the time. If you're walking through the valley and there are shadows all around, do not fear. He will guide you. He will keep you safe and sound. God has promised to never leave you nor forsake you, and His word is true. God is good all the time. He put a song of praise in this heart of mine. God is good all the time. Through the darkest night, His light will shine. God is good. God is good all the time. Though I may not understand, all the plans you have for me, my life is in your hands, and through the eyes of faith I can clearly see God is good
all the time. We put a song of praise in this heart of mine. God is good all the time. Through the darkest night, His light will shine. God is good, God is good all the time. नीले आसमां के पार, नीले आसमां के पार जाएंगे, मेरा यीशु रहता वहाँ। नीले आसमां के पार जाएंगे, मेरा यीशु रहता वहाँ। हम मिलेंगे बादलों पर, हम मिलेंगे बादलों पर, देखेगा सारा जहां। नीले आसमां के पार जाएंगे, मेरा यीशु रहता वहाँ। नीले आसमां के पार जाएंगे, मेरा यीशु रहता वहाँ। उसका कोई भी वादा न होता अधूरा, हर एक वादा उसका होता है पूरा। उसका कोई भी वादा, उसके आने का वादा अब होता पूरा, देखेगा सारा जहां। हम मिलेंगे बादलों पर, हम मिलेंगे बादलों पर, देखेगा सारा जहां। एक साथ मिलकर नीले आसमां के पार जाएंगे, मेरा यीशु रहता वहाँ। नीले आसमां के पार जाएंगे, मेरा यीशु रहता वहाँ। ये विश्वास है मेरा, ये विश्वास है मेरा, जो होता है पूरा। सपना ये मेरा ना रहेगा अधूरा, ये विश्वास है मेरा। उसके संग हम रहेंगे अपने यीशु के, देखेगा सारा जहां। हम मिलेंगे बादलों पर, हम मिलेंगे बादलों पर, देखेगा सारा जहां। नीले आसमां के पार जाएंगे, मेरा यीशु रहता वहाँ। नीले आसमां के पार जाएंगे, मेरा यीशु रहता वहाँ। ये विश्वास है मेरा, ये विश्वास है मेरा, जो होता है पूरा। सपना ये मेरा ना रहेगा अधूरा, ये विश्वास है मेरा। उसके संग हम रहेंगे अपने यीशु के, देखेगा सारा जहां। हम मिलेंगे बादलों पर, हम मिलेंगे बादलों पर, देखेगा सारा जहां। नीले आसमां के पार जाएंगे, मेरा यीशु रहता वहाँ। नीले आसमां के पार जाएंगे, मेरा यीशु रहता वहाँ। नीले आसमां के पार जाएंगे, मेरा यीशु रहता वहाँ। नीले आसमां के पार जाएंगे, मेरा यीशु रहता। क्यों ना एक साथ मिलकर उस महान प्रभु की हम धन्यवाद करें, ताली के साथ हम मुंह खोल के उस महान प्रभु की हम जय जयकार हम करें। क्यों ना कहे वो कितना महान है, वो कितना सर्वशक्तिमान प्रभु है। सच में तू भला परमेश्वर है, तू अच्छा परमेश्वर है प्रभु। सिर्फ तेरी स्तुति करते हैं प्रभु जी, सिर्फ तेरे नाम का उठाते हैं प्रभु जी। Oh yes Lord, we lift up your name Lord Father, we glorify your name Lord Father. You're a mighty Lord, a mighty King Lord Father. We thank you for everything you have done Lord Father. Oh yes Lord Father, praise your name, praise your name. We thank you Lord, we thank you Lord, we thank you Lord, we glorify you. Yes. Brothers, as an example of patience in the face of suffering, take the prophets who spoke in the name of the Lord. As you know, we consider blessed those who have persevered. You have heard of Job's perseverance and have seen what the Lord finally brought about. The Lord is full of compassion and mercy. हे भाइयों,
जिन भविष्यवक्ताओं ने प्रभु के नाम से बातें की, उन्हें दुख उठाने और धीरज धरने का एक आदर्श समझो। देखो, हम धीरज धरने वालों को धन्य कहते हैं। तुमने आयूब के धीरज के विषय में तो सुना ही है, और प्रभु की ओर से जो उसका प्रतिफल हुआ है उसने भी जान लिया है, जिससे प्रभु की अत्यंत करुणा और दया प्रकट होती है। As James says about Job in the Bible, God tested him, he persevered, and he came out successful because God is a merciful God. ऐसा याकूब कहता है जोब के बारे में बाइबल में कि वो कठिनाई सहा, मगर फिर भी प्रभु ने उसे बाहर निकाला. He persevered, he never gave up. So why not, as we sing this song, put our whole confidence, our faith in God. सब कुछ हम प्रभु में दे and believe that whenever we fall down, He lifts us up. जब भी हम गिरते हैं, प्रभु हमें उठाता है. तो क्यों ना हम एक साथ मिलकर हम एक गीत गाए, You are my strength when I'm weak. To give up, I'd be a fool. You are my all in all. Jesus, Lamb of God, worthy is your name. Jesus, Lamb of God, worthy is your name. Taking my sin, my cross, my shame. Taking my sin, my cross, my shame. Rising again, I bless your name. You are my all in all. When I fall down, you pick me up. When I am dry, you fill my cup. You are my all in all. Jesus, you're the Lamb of God. Worthy is your name. Jesus, you're the Lamb of God. Worthy is your name. You are my strength, Lord. You are my strength when I am weak. You are the treasures that I seek. You are my all in all. Seeking you as a precious jewel. Lord, you gave up, I'd be a fool. You are my all in all. Jesus, Lamb of God, worthy is your name. Jesus, Lamb of God, worthy
one man he made every nation of men that they should inhabit the whole earth, and he determined the times set for them and the exact place where they should live. God did this so that men would seek him and perhaps reach out for him and find him, though he is not far from each one of us. उसने एक ही मूल से मनुष्य की सब जातियों सारी पृथ्वी पर रहने के लिए बनाई है, और उनके ठहराए हुए समय और निवास के सिवानों को इसलिए बांधा है कि वे परमेश्वर को ढूंढे, कदाचित उसे टटोल कर पा जाए, तो भी वह हमसे किसी से दूर नहीं है। जैसा वचन कहता है, हमें उसे खोजना चाहिए। We should seek him, but to seek him we should have patience. हम धीरज रखना चाहिए। We know that God is always with us. हम जानते हैं कि प्रभु हमेशा हमारे साथ है। But in this world, it's very difficult to seek His face every day. मगर इस दुनिया में एकदम मुश्किल है कि हम हर दिन हर समय उसकी हम खोज कर सके। तो as we sing this song, why not we call out to the Lord? Why not we ask Him that you take us there where you are? ले चल हमें प्रभु जी, तू है जहाँ, ताकि हम तेरे चेहरे को हम खोज सके, so that we can seek your mighty face. तो जैसे हम आराधना की ओर जाते हैं, हम घुटनों में आए या कैसे भी आप चाहे, मगर हम हाथ उठाकर उस महान परमेश्वर की हम इस गीत के द्वारा हम उसकी आराधना हम करें। तो क्यों ना एक साथ मिलकर मैं गीत गाए, ले चल मुझे। चल मुझे, ले चल मुझे, तू है जहाँ, ले चल मुझे, ले चल मुझे, ले चल मुझे, तेरे सिंहासन के पास, ले चल मुझे। तेरे पास आता हूँ पवित्र दिल से, आराधना मैं करता हूँ प्रेमी मन से। मैं तेरे पास आता हूँ पवित्र दिल से, आराधना मैं करता हूँ प्रेमी मन से। तुझे ढूंढता हुआ, तुझे चाहता हुआ, मुझे खींच ले, मैं दौड़ूंगा। तुझे ढूंढता हुआ, तुझे चाहता हुआ, मुझे खींच ले, मैं दौड़ूंगा। ले चल मुझे, ले चल मुझे, तू है जहाँ, ले चल मुझे, ले चल मुझे, ले चल मुझे, तेरे सिंहासन के पास, ले चल मुझे, तेरे पवित्र स्थान में, तेरे पवित्र स्थान में, तू मुझे ले चल। तुझे देखना मैं चाहता हूँ, हर घड़ी हर
तुझे देखना मैं चाहता हूँ, हर घड़ी हर पल तुझे ढूंढता हुआ, तुझे चाहता हुआ, मुझे खींच ले मैं दौड़ूंगा, तुझे ढूंढता हुआ, तुझे चाहता हुआ, मुझे खींच ले मैं दौड़ूंगा। ले चल मुझे, ले चल मुझे, तू है जहाँ, ले चल मुझे, ले चल मुझे, ले चल मुझे तेरे सिंहासन के पास, ले चल मुझे। जैसे हिरनी पानी के लिए किनारे हम दिल खोल के गाए, जैसे हिरनी पानी के लिए प्यासा मैं भी हूँ तेरे लिए, जैसे हिरनी पानी के लिए प्यासा मैं भी हूँ तेरे लिए, जैसे हिरनी पानी के लिए, जैसे हिरनी पानी के लिए प्यासा मैं भी हूँ तेरे लिए, जैसे हिरनी पानी के लिए, जैसे हिरनी पानी के लिए प्यासा मैं भी हूँ तेरे लिए, तुझे ढूंढता हुआ, तुझे ढूंढता हुआ, तुझे चाहता हुआ, मुझे खींच ले मैं दौड़ूंगा, तुझे ढूंढता हुआ, तुझे चाहता हुआ, मुझे खींच ले मैं दौड़ूंगा, तुझे ढूंढता हुआ, तुझे ढूंढता हुआ, तुझे चाहता हुआ, मुझे खींच ले मैं दौड़ूंगा, तुझे ढूंढता हुआ, ढूंढता। क्यों ना समय ले हम हाथ उठाकर महान परमेश्वर की हम आराधना करें, तू दिल खोल के हम उसकी आराधना करें कि क्यों ना कहे प्रभु जी, जैसे हिरनी पानी के लिए प्यास है प्रभु जी, मैं भी प्रभु जी तेरे वचनों के लिए प्रभु जी प्यासा हूँ प्रभु जी, तेरे चेहरे को मैं खोजना चाहता हूँ प्रभु जी। I want to seek your face Lord Father, we are thirsty for you Lord Father, thirsty, we're more thirsty for you Lord Father। Why don't we open our mouth, क्यों ना मुंह खोल के समय ले उस महान परमेश्वर की हम आराधना करें, क्यों ना कहे कि सच में प्रभु जी, सच में प्रभु जी I need you more Lord Father, I need you more Lord Father, मुझे तेरी जरूरत है प्रभु जी। Yes Lord Father, we come closer to you Lord Father, help us to come closer to you Lord Father। Yes Lord Father, lift up your mighty name Lord Father, because a great Lord Father, you're a mighty King Lord Father। Oh yes Lord Father, तेरी आराधना हम करते हैं प्रभु जी, हम हाथ उठाकर तेरी आराधना करते हैं प्रभु जी, क्योंकि तू भला है, तू अच्छा है प्रभु जी, तू महान है प्रभु जी, सच में प्रभु जी तू कभी ना हमें छोड़ेगा प्रभु जी। Yes Lord Father, we worship in your name Lord Father। क्यों ना फिर से हम वो गीत गाए, क्यों ना पूरे दिल से हम वो गीत गाए, ले चलो मैं प्रभु जी तू है जहां।
मुझे, ले चल मुझे, तू है जहां, ले चल मुझे, ले चल मुझे, ले चल मुझे, तेरे सिंहासन के पास, ले चल मुझे। जैसे हम प्रभु की और नजदीक आए हैं इस गीत के द्वारा, जैसे हम आखिरी गीत गाते हैं, तेरे पास मैं आता हूँ, क्यों ना हम प्रभु की महिमा करें इस गीत के द्वारा। हम एक कमिटमेंट ले, हम एक निर्णय ले कि हम कभी प्रभु से दूर ना जाए, मगर हमेशा उसके करीब हम रहे। We will not leave him back, but we will always be closer to him. तो जैसे हम गीत गाते हैं, क्यों ना पूरे हृदय से हम ये गीत गाए, पूरे सब कुछ हम देते हुए हम ये गीत गाए, तेरे पास मैं आता हूँ। Truly, Lord Father. We hope and we believe that, Lord Father, that you are pleased with our worship today. हम विश्वास करते हैं कि प्रभु जी तू प्रसन्न हुआ है जैसे हम तेरी आराधना की है आज प्रभु जी. Yes, Lord Father, every day, Lord Father, we persevere that we become good, Lord Father, we become pure as you are on this earth, Lord Jesus Christ. हमें कोशिश करते हैं प्रभु जी कि हर टाइम हर रोज प्रभु जी कि हम पवित्र बने प्रभु जी, तेरे जैसा हम बने प्रभु जी. मगर तेरे बिना हम कुछ नहीं प्रभु जी. Without you we are nothing, Lord Father, in this world. तेरे सिवा हम कुछ नहीं प्रभु जी. Without you truly we are nothing true, Lord Father.
इस हम आगे का समय प्रभु जी तेरे चरणों में हम देते हैं प्रभु जी, तू हमें ले प्रभु जी, तो हमें अगुवाई कर प्रभु जी। हेल्प अस टू लर्न समथिंग न्यू फ्रॉम योर वर्ड टुडे लॉर्ड फादर, हमें मदद कर कि हम आज कुछ नया सीख सके प्रभु जी, एंड हेल्प अस टू पुट इनटू प्रैक्टिस लॉर्ड फादर। आई प्रे दैट यू लीड अस, यू गाइड अस, यू ब्लेस अस, इन जीसस प्रेशियस एंड माइटी नेम वी प्रे, आमीन। जय मसीह। फिर से जय मसीह। जैसे भेंट का समय है तो क्यों ना हम ये भेंट के लिए हम ये गीत गाए, सेनाओं का यहोवा। सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है, याकूब का परमेश्वर हमारा उजागर है। सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है, याकूब का परमेश्वर हमारा उजागर है। जिसने आकाश बनाया, जिसने पृथ्वी बनाई, जिसने आकाश बनाया, जिसने पृथ्वी बनाई, जो सर्वशक्तिमान प्रभु है, वो यहोवा हमारे संग संग है। जो सर्वशक्तिमान प्रभु है, वो यहोवा हमारे संग संग है। सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है, याकूब का परमेश्वर हमारा उजागर है। सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है, याकूब का परमेश्वर हमारा उजागर है। आइए हम भेंट के लिए प्रार्थना करें। प्रभु यीशु, हम आपको धन्यवाद कहते हैं इस सुंदर समय के लिए। आज आपने हमें सुबह का वक्त आपकी उपस्थिति में लेकर आए हैं। हम आपको धन्यवाद कहते हैं प्रभु, और आपने हमें अच्छी रीति से आपकी आराधना, आपकी स्तुति करने के लिए और आपका नाम को ऊंचा उठाने के लिए हमें सहायता मदद किया। इसके लिए हम आपको धन्यवाद करते हैं। हम प्रार्थना करते हैं प्रभु यीशु, जो भेंट है वो प्रभु हम आपके सम्मुख इस भेंट को लेकर आते हैं, और इस भेंट के लिए प्रार्थना करते हैं जो लोगों ने बहुत ही आनंद से, खुशी से प्रभु आपके राज के लिए ये जो भेंट दिए हैं, इस भेंट में प्रभु यीशु आप आशीष करें, और जो लोग ने दिया है उनको भी आशीषित कर प्रभु। और इस भेंट को आप आशीष करके अपने राज के लिए प्रभु यीशु आप इसको उपयोग में आप लेकर आए। इस भेंट में प्रभु आपका आशीष मांगते हैं। प्रभु यीशु, हम आपको धन्यवाद कहते हैं। इस लॉकडाउन में कोविड-19 इस महामारी की बीमारी से भी आपने हमें अभी तक हमको सुरक्षा रखा है। आपने हमें प्रभु हर तकलीफ में से आपने हमें बचा के रखा है। हम आपको धन्यवाद कहते हैं क्योंकि आप हमारे जीवित परमेश्वर है, जो आपने कहा कि मैं जगत के अंत तक तुम्हें साथ में हूँ, ना छोड़ूंगा ना त्यागूंगा। हम धन्यवाद कहते हैं इस समय प्रभु, सचमुच आप हमारे साथ है प्रभु, और आपने हर पल हर वक्त आपने हमें संभाला है। इसके लिए हम धन्यवाद कहते हैं प्रभु। हमारे बीच में जो लोग बीमार है उनको आपके हम सम्मुख लेकर आते हैं। पवित्र आत्मा आप उनके ऊपर अपनी चंगाई को हाथ रख दे और लोगों को स्वस्थ और चंगाई का जीवन आप दे। हम इसके लिए प्रार्थना करते हैं प्रभु यीशु। हम प्रार्थना करते हैं आगे जैसे आपके सेवक के द्वारा हम आपका वचनों को हम सुनेंगे, पवित्र आत्मा हम सभी के हृदय और मन कान को खोल दे, ताकि आपका वचन को हम सुन सके, समझ सके, और जो कुछ प्रभु आपके दास के द्वारा जो वचन आज हमें देना चाहते हैं उसके प्रति आज्ञाकारी होने के लिए आप मदद कर, और आपका सेवक के ऊपर भी आपका हाथ रहे, उनको आप आगे वचन देने के लिए सामर्थ्य शक्ति दे। धन्यवाद कहते हैं इस समय प्रभु आपने हमें चलाया, आगे का समय भी आपके हाथ में देते हैं। आप ले प्रभु यीशु मसीह हमें अगुवाई कर। ये सारी विनती प्रार्थना यीशु के मीठे नाम से प्रार्थना करते हैं, आमीन। Praise the Lord, church. जय मसीह कलीसिया। What a joy again for us to be here together in God's presence and to worship God together. और क्या ही आनंद की बात है कि फिर से परमेश्वर की उपस्थिति में इकट्ठे आना और परमेश्वर की आराधना करना। We thank God that He's been good to us. और हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं क्योंकि वो हमारे साथ भला रहा है। And even as we come to the end of
the month of November, things are changing a bit, but we still have confusions. और जैसे हम नवंबर के अंतिम दिनों में आ रहे हैं तो जो परिस्थिति वो बदल रही है, लेकिन कुछ उलझने अभी भी हैं। But we thank God that He's been so good to each one of us. लेकिन हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं कि वो हम सभी के साथ अच्छा रहा है। And God has been so good in providing for all of our needs. और परमेश्वर भला रहा है हमारी ज़रूरतों को पूरी करने के लिए। And this morning, what a joy for us to worship God together and give Him glory and thanks. और आज की सुबह क्या ही आनंद की बात है कि हम सभी साथ में मिलकर परमेश्वर की आराधना करें और उसकी महिमा दें। We have possibilities of meeting physically for worship sometime soon. और संभावना है कि हम सभी शारीरिक रूप से आकर मिले और परमेश्वर की आराधना करें जल्द ही। And so we give thanks to God for that. तो उसके लिए हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। I want you to continue to pray that it'll happen very smoothly. और मैं चाहूँगा कि आप प्रार्थना करें कि ये जो है वो बहुत ही आराम से हो जाए ये काम। Because it's not so easy with the present conditions and the restrictions for us to meet physically. क्योंकि जो वर्तमान की परिस्थिति है और जो भी हम पर लागू इसमें जो लाया गया है तो उसके तहत ये बहुत ही आसान नहीं है कि हम शारीरिक रूप से इकट्ठे हो सके। But we need to pray and ask God to keep us safe whenever we come together. लेकिन हमें ज़रूरत है कि हम परमेश्वर से प्रार्थना करें और मांगे कि वो हमें सुरक्षित रखे जब कभी हम मिले तो। Before we go into the word, there is one announcement that I need to make. और वचन में जाने से पहले एक सूचना है जो मैं बताना चाहूँगा। We are saddened to share the death of Mr. Nathuram Gimbal. और जो नाथुराम गिम्बल उनकी जो दुखद घटना है, Earlier in this, the last week, he passed away. और इस हफ्ते के शुरुआती दिनों में वो गुजर गए। And he was not our member, और वो हमारे सदस्य नहीं थे, but 4 of his children are very much part of our church. लेकिन उनके जो 4 संतान हैं वो हमारे ही पूरे भाग है। So at this moment, we share our sorrows with Sonu, Rohini, Santosh, and Suman. और हमारा जो दुख है हम उनके साथ बांटते हैं, जो सोनू सिस्टर, संतोष, सुमन और जो रोहिणी है। So I would want you to join us as we pray for these families. और मैं चाहूँगा कि आप हमारे साथ जुड़ जाए जैसे हम इस परिवार के लिए प्रार्थना करते हैं। So let's bow our heads and pray. क्यों ना हमारे सिर को झुकाए और प्रार्थना करें। Our Father God, we thank you that you love each one of us. पिता परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते हैं क्योंकि आप हम सभी से प्रेम करते हो। Thank you, Father, for the opportunity to gather together today once again to worship you. धन्यवाद देते हैं पिता कि आपने हमें फिर से इकट्ठा किया, हम आपकी आराधना कर सके। Lord, you are a good God. प्रभु आप भले परमेश्वर हैं And you always look at us in a way that you want to bless us more. और प्रभु आप हमेशा हमें उस तरीके से देखते हैं कि आप हमें और आशीष देना चाहते हैं। Thank you for the time of worship that we had. धन्यवाद देते हैं आराधना के समय के लिए प्रभु। Thank you for the worship team who has continued to strive to help us to worship you better. धन्यवाद देते हैं आराधना के दल के लिए जो निरंतर हमें आपकी आराधना में चलाते हैं। And we want to pray now that you would specially bless the possibility of us coming together. और हम प्रार्थना करते हैं कि जो हमें एक साथ मिलने की जो संभावना है उसमें आप आशीष दें। We want to pray and ask, Lord, that when we do come together, that you would keep all of us safe. प्रभु हम प्रार्थना करते हैं और हम आपसे मांगते हैं कि जब हम एक साथ मिलेंगे तो आप हमें सुरक्षित रखें। Lord, we look forward to the joy of meeting with each other. और प्रभु हम देख रहे हैं कि एक दूसरे को मिलने का वो आनंद हम उठा सके। And so we pray, Lord, that when we do come together, we will enjoy the fellowship and the joy with each other. प्रभु हम आपसे प्रार्थना करते हैं जब हम इकट्ठे आएंगे तो वो संगति का आनंद हम उठा सके। At this moment, we especially want to pray for the Gimbal family. प्रभु इस समय हम खास करके प्रार्थना करते हैं गिम्बल परिवार के लिए। We especially pray for Sonu and for Rohini and for Santosh and Suman and their families. प्रभु हम खास करके प्रार्थना करते हैं सोनू के लिए, रोहिणी के लिए, सुमन और संतोष उनके पूरे परिवार के लिए। And we want to pray, Lord, at this time when they grieve the loss of their father. प्रभु हम प्रार्थना करते हैं इस समय जो अपने पिता के खो देने का उन्हें दुख है। We pray, Lord, that you would comfort them.
प्रभु हम मांगते हैं कि आप उन्हें सांत्वना दे। We want to thank you for the full life that you gave to their father हम आपको धन्यवाद करते हैं क्योंकि उनके पिता को आपने पूरी जिंदगी दी है and all that he was able to accomplish on this earth. और जो कुछ इस धरती पर वो पा सके हैं। And now we pray for these families. और अब हम प्रार्थना करते हैं इस परिवार के लिए। And we pray, Lord, that you would be with each one of them. और हम प्रार्थना करते हैं आप उन सभी के साथ रहे। And we pray that your peace, which passes all understanding, would be with each one of them. और हम प्रार्थना करते हैं कि आपकी शांति जो सारे समझ से परे है वो उन सभी के साथ बनी रहे। We commit all of them into your hands. हम उन सभी को आपके हाथों में देते हैं। Now we pray, Lord, as we open your word, प्रभु हम प्रार्थना करते हैं जैसे वचन को हम खोलेंगे you speak to us. आप हमसे बातें करें। We ask, Holy Spirit, that you would teach us. पवित्र आत्मा हम मांगते हैं आप हमें सिखाए। Bless us with your word again this morning. आज की सुबह आपके वचन से आप हमें आशीष दें। Prepare us so that we would be ready for what is to come in the future. हमें तैयार कर ताकि हम तैयार हो सके जो भविष्य में आने वाला है। We want to give you all glory and honor. हम सारा आदर महिमा आपको देते हैं Commit the time ahead of us. और आगे का समय हम आपको देते हैं। Bless us with your word. आपके वचन से हमें आशीष दे। All this we pray in Jesus' name. ये सारी प्रार्थना हम मांगते हैं यीशु के नाम से। Amen. आमीन। What a joy again to study from God's word. और प्रभु के वचन से अभ्यास करना फिर से क्या ही आनंद की बात है। Over this particular month of November, और नवंबर महीने में this is the third time I've had the opportunity to share the word. और ये तीसरी बार मुझे मौका मिला है आपके साथ वचन बांटने का। And during this month, I have focused on the hardships that we go through in our lives. और इस महीने में मैंने जो कठिनाइयों के ऊपर बताया जिस कठिनाइयों से हम होकर गुजरते हैं। If you remember the 1st of November, I shared with you how we need to be able to live even in the periods of darkness. और जो पहले नवंबर को मैंने आपको बताया था कि कैसे हम जो अंधेरे काल का जो समय होता है उसमें भी कैसे हम जिए। We looked at how even whatever happens in our life, how we need to be those who will never give up on God. और मैंने बताया था कि हमारे जीवन में जो कुछ होता है हमें कभी भी हार नहीं मानना है Because God is always with us. क्योंकि परमेश्वर हमेशा हमारे साथ है। And then 2 Sundays back, we looked at contentment. और 2 रविवार पहले हमने देखा था संतुष्टि के ऊपर। We looked at whatever happens to us, we need to be content. और हमने देखा कि हमारे साथ जो कुछ होता है हमें संतुष्ट रहना है। We looked at factors that take us away from being content in the Lord. और हमने कुछ बातों को देखा जो प्रभु में हमें संतुष्ट रहने से दूर लेकर जाते हैं। We also looked at that passage where Jesus taught and he said, "Do not worry." और हमने वो भाग को भी देखा जहाँ पर प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि चिंतित ना हो। Today I want to take you to the third part of that particular subject. और उस विषय के तीसरे भाग में आज हम जाएंगे। And today I want to talk to you about perseverance. और आज मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा दृढ़ता से थामे रहने के विषय में। Now, perseverance can be looked at in different ways. और दृढ़ता से थामे रहने को हम अलग-अलग नजरिए से देख सकते हैं। But I have put down one line here to explain it in a phrase. लेकिन यहाँ पर मैंने एक वाक्य लिखा है उसे समझाने के लिए। What I've written is refusing to give up when life gets hard. और ये है कि जब हमारा जीवन और कठिन बन जाता है उस समय हार मानने से इनकार करना। Now, if I was to stop here and ask you now, और अगर मैं अभी आपको रोकूं और आपसे पूछूं, are things going hard or are things hard in your life at the moment? क्या आपके जीवन में जो चीजें वो और कठिन बन गई है? Is there difficulty still there in your life now? और आपके जीवन में जो कठिनाइयां अभी भी है क्या? Let's talk about the lockdown and the pandemic that is on. और हम बात करें जो लॉकडाउन के बारे में जो अभी चल रहा है। Pandemic started in earlier in the year. और ये जो साल की शुरुआत में इस समय का जो शुरू हुआ। The lockdown began in the end of March. और मार्च महीने के अंत से जो लॉकडाउन वो शुरू हुआ। 8 months later, we are still talking about restrictions. और
वो होने के 8 महीने बाद भी हम अभी भी जो पाबंदी उसके विषय में बात कर रहे The हैं। last figures that I have is that 1.330, that is 1.3 lakhs of Indians have died because of the pandemic. और पिछली बार जो मैंने देखा था तो ऐसे बताया गया था जो 1.3 लाख लोग इस समय इस वायरस से मारे गए हैं And people are still in the hospitals. और अभी भी लोग जो अस्पताल में हैं। And they say that many who were positive will have problems even later on. और वे लोग कहते हैं कि जो लोग पहले इस वायरस से जिनको ये वायरस पहले हुआ था तो ऐसी संभावना है कि आगे भी उनको हो सकता है। Everything was disturbed. और हर एक चीज जो हिल गया था Many of us lost jobs. और हम में से बहुत लोगों ने अपने काम को खो दिया Many of us lost income. और हम में से बहुत लोगों ने अपने पैसों को खो दिया। Many of us are struggling. हम में से बहुत लोग संघर्ष कर रहे हैं। I was traveling this morning and I was talking with the person who was driving the vehicle. और आज सुबह जब मैं सफ़र कर रहा था तो जो व्यक्ति गाड़ी चला रहा था मैं उससे बात कर रहा था And he, by profession, he's a driver. और उसका जो उसका पेशा देखने जाए तो वो एक गाड़ी चलाने वाला है। And he told me that already over the last 8 months, I have picked up or collected a debt of about 3 lakhs. और उसने बताया कि पिछले कुछ महीनों से उसके जो कर्जा है वो 3 लाख हो गए हैं। And I kept listening to him. और मैं उसको सुनता रहा। He said that it will take me at least 2 years to come back to normal. और फिर उसने कहा कि मुझे मेरे सामान्य जिंदगी में आने के लिए 2 साल तो जाएंगे ही। I'm sure that it's not true about many of you. और मैं जानता हूँ कि हम में से बहुतों के साथ ऐसा नहीं है Because God has been good to us. क्योंकि परमेश्वर हमारे साथ भला रहा है। But are you going through hardships in your life? लेकिन क्या आप आपके जीवन में कठिनाइयों से होकर जा रहे हैं? If I was to ask you to raise your hand, अगर मैं आपसे कहूँ कि आप अपने हाथ को उठाए very few hands will be down. तो थोड़े ही हाथ नीचे होंगे। All of us will raise our hands. हम में से बहुत सारे हाथ को ऊपर करेंगे Because we are going through difficulties in our lives. क्योंकि हमारे जीवन में हम कठिनाइयों से होकर गुजर रहे हैं। So hardships will be with us always. और जो कठिनाइयाँ हैं वो हमेशा हमारे साथ होंगे। When we look at ourselves as believers in the Lord Jesus Christ, और जब हम अपने आप को देखते हैं कि हम प्रभु यीशु मसीह में एक विश्वासी है। okay, 2020 was all kinds of confusions. और जो 2020 वो पूरे उलझनों से भरा हुआ था। What about 2021? फिर 2021 का क्या? Will it be better than this year? क्या आने वाला साल इस साल से बेहतर होगा? Will there be opposition to Christians in our country in the next year? क्या अगले साल क्रिस्तियों के लिए हमारे जो देश में रुकावटें आएंगी? Will we go through more persecutions in our country because we believe in Jesus Christ? और क्या लोग सताव में जाएंगे क्योंकि हम प्रभु यीशु पर विश्वास करते हैं? All that we know is that it'll probably get more difficult. और हम जितना जानते हैं कि शायद वो और कठिन हो सकता है। So when we are going through hard times, तो जब हम कठिन समय से गुजरते हैं, we are struggling financially, हम पैसों में जो हमें तंगी पड़ती है, we are struggling in relation to our health. और हमारे जो सेहत से लेकर हम तकलीफ में होते हैं। Many people are struggling mentally. और बहुत सारे लोग मानसिक रूप से तकलीफ में हैं। We are going through, some of us may be struggling even spiritually. और हम में से बहुत लोग आत्मिक रूप से भी होकर गुजर रहे होंगे तकलीफ में। You know, when the lockdown began, people kept saying that now you have lots of time. और जब लॉकडाउन शुरुआत हुआ तो लोग कहने लगे कि आपके पास बहुत सारा समय है। And maybe now you have more time to read the Bible. और शायद अभी आपके पास अधिक समय है पवित्र शास्त्र पढ़ने का। Now you have more time to spend in prayer. अभी आप और ज्यादा समय प्रार्थना में बिता सकते हो। But now when I still speak to some people, they are saying no, we are still struggling. लेकिन अब भी जब मैं लोगों से बात करता हूँ तो वो लोग बताते हैं कि नहीं अभी भी मुझे मुश्किल हो रहा है। So what should we do when we are going through hard times? तो हम क्या करते हैं जब हम कठिन परिस्थिति से गुजरते हैं? Turn with me to Isaiah chapter 40 and verse 31. और हम आएंगे यशाया के 40 अध्याय वचन 31 में। And it's a beautiful verse which we all know. और ये बहुत ही सुंदर वचन है जो हम सभी जानते हैं। But let's start with that. लेकिन हम उससे शुरुआत करें। This is what the prophet says, but they who wait for the Lord
shall renew their strength. They shall mount up with wings like eagles. They shall run and not be weary. They shall walk and not faint. परंतु जो यहोवा की बाट जोते हैं वे नया बल प्राप्त करते जाएंगे। वे उकाबों के समान उड़ेंगे। वे दौड़ेंगे और श्रमित न होंगे, चलेंगे और थकित न होंगे। You know, if you look at verse 39, it's specifically addressed to the youth. और जब आप 29 वचन को देखेंगे तो वो जवानों के बारे में बताता है। You look at verse 30, says, even youth shall faint and be weary, and young men shall fall exhausted. और फिर वचन 30 में वो कहता है कि तरुण तो थकित और श्रमित हो जाते हैं और जवान ठोकर खाकर गिरते हैं। But then the scripture says, those who wait, they who wait for the Lord shall renew their strength. फिर 31 वचन कहता है, परंतु जो यहोवा की बाट जोते हैं वे नया बल प्राप्त करते जाएंगे। Simply means that if we will persevere, we will wait, then we will all be renewed in our strength. तो फिर साधारण शब्दों में कि अगर हम रुके रहेंगे, परमेश्वर की बाट जोहेंगे तो हमें नया बल प्राप्त मिलेगा And we will probably rise to higher levels. और हम संभावना है कि और ऊंचे स्थानों पर पहुंच जाए। 4 lessons I want to share with you this morning. और आज की सुबह 4 जो सीखने की बातें मैं आपको बताऊंगा। And let's start with the work of Jesus. तो हम पहले शुरू करेंगे प्रभु यीशु मसीह के काम से। What I want us to look at is the ascension of Jesus and the day of Pentecost. और जो मैं आपको बताना चाहूँगा वो है कि यीशु मसीह का स्वर्गारोहण होना और पिंतेकुस्त के बारे में। So if you would turn with me to Matthew chapter 28, और अगर आप लोग मेरे साथ आते हैं मत्ती के 28 अध्याय में verse 16 to 20. वचन 16 से लेकर 20। Let me read that and then we'll read that in Hindi. Now the 11 disciples went to Galilee, to the mountain to which Jesus had directed them. And when they saw him, they worshipped him, but some doubted. And Jesus came and said to them, all authority in heaven and on earth has been given to me. Go therefore and make disciples of all nations, baptizing them in the name of the Father and of the Son and of the Holy Spirit, teaching them to observe all that I have commanded you. And behold, I am with you always to the end of the age. 11 चेले गलील में उस पहाड़ पर गए जिसे यीशु ने बताया था। उन्होंने उसके दर्शन पाकर उससे प्रणाम किया, पर किसी किसी को संदेह हुआ। यीशु ने उनके पास आकर कहा, स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार मुझे दिया गया है, इसलिए तुम जाओ, सब जातियों के लोगों को चेला बनाओ और उन्हें पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो और उन्हें सब बातें जो मैंने तुम्हें आज्ञा दी है मानना सिखाओ, और देखो मैं जगत के अंत तक सदा तुम्हारे संग हूँ। Now this is the time when Jesus is not with these disciples. और ये वो समय है जब प्रभु यीशु मसीह अपने शिष्यों के साथ नहीं है। Rather, at this particular point, they are with Jesus. और इस समय जो वे लोग जो चेले हैं वो यीशु के साथ है। But just a couple of days earlier was when Jesus died. लेकिन ये जो घटना होने के कुछ दिन पहले यीशु मसीह की मृत्यु होती है। And they had followed him for almost 3 years. और करीबन 3 साल वे लोग प्रभु यीशु मसीह के पीछे चले थे। And they were comfortable that Jesus was with them all the time. और वे लोग बहुत आराम से थे और अच्छा महसूस करते थे कि यीशु मसीह हमेशा उनके साथ है। But when Jesus was dead, लेकिन जब यीशु मसीह मर गए, they were all afraid. वे सभी लोग डर गए थे। Like the scriptures say that they had locked themselves into the room. और वचन बताता है कि उन लोगों ने अपने आप को कमरे में बंद कर लिया था। But the good thing for them was that after the resurrection, Jesus came and showed himself to his disciples. और उनके लिए अच्छी बात ये थी कि पुनरुत्थान के बाद प्रभु यीशु मसीह उनके पास आए और लोगों को उन्होंने अपने आप को दिखाया। And there were several things that Jesus had taught when he was with them. और बहुत सारी चीजें जो प्रभु यीशु मसीह ने उन्हें सिखाया था जब वो उनके साथ थे। And now he was reminding them and telling them that all that I had assured you, all of that is going to happen. और अभी यीशु मसीह उनको वो सारी बातें याद दिलाते हैं और आश्वासन देते हैं कि जो कुछ मैंने तुमसे कहा था वो होने वाला है। Now,
before the ascension of Jesus, he was telling them that I have been with you till this time. और यीशु मसीह स्वर्गारोहण होने से पहले उन्होंने लोगों को कहा कि मैंने तुमको ये बताया है, He's saying, now I'm going to go away. और उन्होंने कहा कि अब मैं जाने वाला हूँ, And when I go away, I'm going to send the Holy Spirit. और जब मैं चला जाऊंगा तो मैं पवित्र आत्मा को भेजूंगा। And what is special about the Holy Spirit? और पवित्र आत्मा की खास बात क्या है? He will be with you always. कि वो हमेशा तुम्हारे संग रहेगा। Let's look at verse 18. और हम देखेंगे वचन 18। Jesus came and said to them, all authority in heaven and on earth has been given to me. यीशु ने उनके पास आकर कहा, स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार मुझे दिया गया है, All authority is with me. कि सारा अधिकार वो मेरा है। So whatever I am telling you is true. It is not false. और जो कुछ मैं तुमसे कह रहा हूँ वो सच है, वो झूठ नहीं है। Then come down to verse 20. फिर हम आते हैं वचन 20 में। It says, teaching them to observe all that I have commanded you, and behold, I am with you always to the end of the age. और उन्हें सब बातें जो मैंने तुम्हें आज्ञा दी है मानना सिखाओ, और देखो मैं जगत के अंत तक सदा तुम्हारे संग हूँ। Yes, I am going away now, यीशु ने कहा कि हाँ मैं अभी जा रहा हूँ, but I will be with you always. लेकिन मैं हमेशा तुम्हारे संग रहूंगा। And he was also talking about the Holy Spirit. और वो पवित्र आत्मा के बारे में भी बोल रहे थे। Come with me to Acts chapter 1. फिर मेरे साथ आए प्रेरितों के काम के 1 अध्याय में। For us to understand this whole thing clearly, we may have to read the chapters 1 and 2. और पूरी बात को समझने के लिए हमें शायद प्रेरितों के काम का 1 और 2 पूरा अध्याय पढ़ना But पड़ेगा, we will just pick up some verses. लेकिन उसमें से हम कुछ वचनों को देखेंगे। Acts chapter 1 verse 3. प्रेरितों के काम 1 अध्याय वचन 3। It says, he presented himself alive to them after his suffering by many proofs, appearing to them during 40 days and speaking about the kingdom of God. उसने दुख उठाने के बाद बहुत से पक्के प्रणामों से अपने आप को उन्हें जीवित दिखाया, और 40 दिन तक वो उन्हें दिखाई देता रहा और परमेश्वर के राज्य की बातें करता रहा। He presented himself and assured them that, see, I am with you. और यीशु मसीह ने उनके सामने अपने आप को प्रस्तुत किया और उन्हें बताया कि मैं तुम्हारे संग हूँ। Then verse 4. फिर वचन 4। And while staying with them, he ordered them not to depart from Jerusalem, but to wait for the promise of the Father, which he said, you heard from me. और उनसे मिलकर उन्हें आज्ञा दी, यरूशलेम को न छोड़ो, परंतु पिता की उस प्रतिज्ञा के पूरे होने की बाट जोहते रहो, जिसकी चर्चा तुम मुझसे सुन चुके हो। He's telling the disciples, wait here, because what I have promised you, you will get that. और यीशु मसीह ने चेलों से कहा कि तुम यहीं पर रुको, और जो मैंने वादा तुमसे किया है वो तुम्हें मिलेगा। Now, what was the promise? और वादा क्या था? You shall be baptized with the Holy Spirit. कि तुम पवित्र आत्मा से बपतिस्मा पाओगे। Now, once the Holy Spirit comes to us, the Holy Spirit is with us. और जब एक बार पवित्र आत्मा हमारे अंदर आ जाता है तो वो हमारे साथ हमेशा रहता है। That was what was different from the Old Testament days. और ये जो बात वो पुराने नियम के जो दिन थे उससे अलग था। In the Old Testament days, when God wanted to use a person, the Holy Spirit came on that person. और पुराने नियम में जब परमेश्वर किसी व्यक्ति का उपयोग करना चाहते थे तो जो पवित्र आत्मा है उस व्यक्ति के ऊपर आता था। But now, the advantage that we have in the New Testament age is that the Holy Spirit is with us always. अब नए नियम में हमारे लिए जो फायदे की बात यह है कि जो पवित्र आत्मा है वो हमेशा हमारे साथ रहता है। Then come down with me to chapter 2. फिर आप मेरे साथ आए 2 अध्याय में। And we'll read verse 1 to 4. हम पढ़ेंगे 1 वचन से लेकर 4 वचन तक। When the day of Pentecost arrived, they were all together in one place. And suddenly there came from heaven a sound like a mighty rushing wind, and it filled the entire house where they were sitting. And divided tongues as of fire appeared to them and rested on each one of them. And they were all filled with the Holy Spirit and began to speak in other tongues as the Spirit gave them utterance. जब पिन्तेकुस्त का दिन आया तो वे सब एक जगह इकट्ठे थे। एकाएक आकाश से बड़ी आंधी की सी सनसनाहट का शब्द हुआ, और उससे सारा घर जहाँ वे बैठे थे गूंज गया, और उन्हें आग की सी जीभें फटती हुई दिखाई दी, और उनमें से हर एक पर आ ठहरी। वे सब पवित्र आत्मा से भर गए, और जिस प्रकार आत्मा ने उन्हें बोलने की सामर्थ दी
वे अन्य अन्य भाषा बोलने लगे। Now, verse 4 is what I want you to look at for a minute. और वचन 4 जो है मैं चाहूंगा कि उसे हम देखें। It says, and they were all filled with the Holy Spirit. और यहाँ पर लिखा है कि वे सब पवित्र आत्मा से भर गए। All of those who were there, all the believers there were filled with the Holy Spirit. और वहाँ पर जितने भी लोग थे, जितने भी विश्वासी लोग थे, वे सभी पवित्र आत्मा से भर गए। Now, that is something special for all of us. और ये जो बात वो हम सभी के लिए खास है, Because when the Holy Spirit comes on us, He is with us. क्योंकि जब पवित्र आत्मा हमारे ऊपर आता है तो वो हमारे साथ रहता है। It's not like what happened with King Saul. और ये उस प्रकार से नहीं है जैसा राजा शाऊल के साथ हुआ। When the Spirit was there with him, he was normal, he was good. और जब आत्मा उसके साथ था तो वो जो सामान्य रीति से था वो बहुत अच्छा था। But then there were periods when the Spirit would leave him और ऐसे समय आते थे जब जो आत्मा है वो शाऊल को छोड़कर चला जाता था and he would become almost like a madman. और फिर वो पूरी रीति से एक पागल व्यक्ति की तरह बन जाता For था। you and me, the assurance is that God is with us. आपके और मेरे लिए जो आश्वासन ये है कि पवित्र आत्मा हमेशा हमारे साथ है। So that's the first lesson I want to leave with you this morning. तो पहले जो सीखने की बात मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, When life gets hard, जब जिंदगी वो कठिन बन जाती है remember God is with you. तो आप ये याद रखें कि परमेश्वर आपके साथ है। I had this joy of visiting our Gadchiroli mission field a couple of weeks ago. और कुछ हफ्ते पहले मुझे ये अवसर मिला था कि हमारा जो गढ़चिरौली का जगह है उसे मैं जा सकूं। For me, it was another lesson on perseverance. और फिर मेरे लिए ये मुझे भी ये जो सीखने का था कि मैं दृढ़ता से थामे रहूं। Because from the time I became part of Shalom, I have been wanting to visit the mission field. क्योंकि जब से मैं शालोम का भाग बना हूँ तब से मैं चाह रहा था कि मैं एक बार गढ़चिरौली जाऊँ। But somehow it never happened. लेकिन कुछ ना कुछ हुआ जिसकी वजह से मैं नहीं जा पाया। But finally I was able to be there. लेकिन आखिर में मैं जा पाया। What a joy to see all those believers over there. और क्या ही आनंद की बात थी वहाँ के सभी विश्वासियों को देखना। What a joy to actually fellowship with them and share the word with them. और उनके साथ संगति करना, उनके साथ प्रभु का वचन बांटना। I'm sure things, when they get hard, we think that, hey, now I'm alone, nobody is with me. और मैं निश्चिंत हूँ कि जब चीज़ें कठिन हो जाती है, जिंदगी कठिन हो जाती है तो हम सोचते हैं कि अब मैं पूरी रीति से अकेला हूँ, मेरे साथ कोई नहीं है। But when I was in that mission field, लेकिन जब मैं उस मिशन की जगह पर था there was no doubt that God was there. और उसमें कोई शंका नहीं थी कि परमेश्वर वहाँ पर था। Because it was a weekday, क्योंकि वहाँ पर एक हफ्ते का दिन था it was not a Sunday. और वो रविवार नहीं था। So on a weekday evening, we were calling people for worship. और किसी एक हफ्ते के किसी एक दिन में हमने लोगों को बुलाया परमेश्वर की आराधना And करने। I asked my brother Santosh how many people will be there. और मैंने भाई संतोष से पूछा कि कितने लोग वहाँ पर आएंगे। He said normally 35 people come. और उन्होंने बताया कि सामान्य रीति से 35 लोग आते हैं। So I said, okay, let's pray that 35 people will come. तो फिर मैंने कहा कि ठीक है, हम प्रार्थना करेंगे, 35 लोग आना Then चाहिए। he said, no, only the people from Maler village will come, the others will not come. फिर उन्होंने बताया कि जो मालेर गांव के लोग हैं सिर्फ वही लोग आएंगे, बाकी के लोग नहीं I आएंगे। said, no, I'll still pray for 30 people to come. मैंने कहा कि नहीं, तो भी मैं प्रार्थना करूंगा कि 35 लोग आना चाहिए। So at one point, I counted the number of people. We were at least 30 people over there. और वहाँ पर फिर जब लोग आए तो वहाँ पर मैंने गिनती किया तो करीबन वहाँ पे 30 लोग तो थे ही। They had already come the previous day on Sunday for a normal Sunday worship service. और वे लोग पहले एक दिन पहले भी आए थे, रविवार के दिन सामान्य जो आराधना होता है उसके लिए। But they were there that day for the worship service. लेकिन उसके बाद जो हमने उनको बुलाया था उस दिन भी वे थे प्रभु की आराधना करने। Sometimes when things go bad or things get hard, we think that God is not with us. और जब कई बार चीज़ें खराब हो जाती है और जो चीज़ें कठिन हो जाती है तो हम सोचते हैं कि परमेश्वर हमारे साथ नहीं है। One of the things I learned in this mission trip was that God is with the people who are working hard over there in Gadchiroli. और मैंने उस वहाँ पर जो मिशन की जगह पर ये देखा कि वहाँ पर जो लोग प्रभु की सेवा कर रहे हैं परमेश्वर उन सभी के साथ है। I was able to see the blessings of the work over there. और मैं वहाँ पर आशीषों को देख पाया।
So let me share this lesson again with you. तो मैं फिर से आपको ये सीखने की बात बताऊं। When life gets hard, जब जिंदगी कठिन बन जाती when है, things become difficult for you, जब चीजें आपके लिए और मुश्किल बन जाती है, you think that, hey, now I'm alone, I will not be able to survive. और आप सोचते हो कि नहीं, अब मैं अकेला हूँ, मैं जी नहीं पाऊंगा। Remember that God is with you. आप ये याद रखें कि परमेश्वर आपके साथ है। You are a child of God. आप परमेश्वर के संतान हैं, God will never leave his children alone. और परमेश्वर कभी भी उसके संतान को अकेला नहीं छोड़ेगा। So number one, remember that God is with you. तो पहली बात कि हमेशा याद रखें परमेश्वर आपके साथ है। Let me take you to the second scripture verse. और दूसरे वचन में हम जाएंगे, Turn with me to Hebrews chapter 12. और हम आएंगे इब्रानियों के 12 अध्याय में, And we'll read that verse 1. और हम पढ़ेंगे वचन 1। This is what it reads. Therefore, since we are surrounded by so great a cloud of witnesses, let us also lay aside every weight and sin which clings so closely, and let us run with endurance the race that is set before us. इस कारण जबकि गवाहों का ऐसा बड़ा बादल हमको घेरे हुए है, तो आओ हर एक रोकने वाली वस्तु और उलझाने वाले पाप को दूर करके वह दौड़ जिसमें हमें दौड़ना है, धीरज से दौड़े। Now, there is a phrase in that verse 1 which is a cloud of witnesses. और वहाँ पर ऐसा लिखा गया है कि गवाहों का ऐसा बड़ा बादल, Okay, there's a cloud of witnesses. और वहाँ पर गवाहों का बादल है। Now, all of you science students will know what a cloud is. और आप जो भी साइंस के विद्यार्थी हैं, आपको पता होगा कि बादल क्या है। All of you IT students will have a different idea of cloud. और आप जो लोग आईटी के विद्यार्थी हैं, आपके लिए जो बादल के लिए अलग विचार होगा। But I'm talking about the natural cloud. लेकिन जो प्राकृतिक वाला जो बादल है, मैं उसकी बात कर रहा हूँ। What is a cloud actually? और वास्तव में जो बादल वो क्या है, What does it contain? वो किससे बना हुआ है? Basically, it's water. और सामान्य रूप से देखा जाए तो वो पानी से बना है। All the water that vaporizes from the earth goes up into the sky. और जितना भी पानी इस धरती पर है, जब वो भाप बनकर ऊपर जाता है तो आसमान में जब वो जाता है तो बादल बनता है। And as it keeps going higher, it gets a little heavier. और जब वो और ऊपर जाता है तो वो और भारी बनते जाता है। And then, when they all come together, they form a cloud. फिर जब वो सारे पानी इकट्ठे हो जाते हैं तो वो बादल बन जाते हैं। And then during the rainy season, you have that heavy pouring down of rain. That's from the cloud. और जब बरसात का समय होता है तो जो बारिश ऊपर से आती है वो बादल से आता है। Now, for those of us who live in Mumbai, I don't need to explain to you about the rains. और हम सभी जो मुंबई में रहते हैं, मुझे ज़रूरत नहीं है कि मैं आपको बारिश के बारे में बताऊं। Because they say in Mumbai, when it rains, it pours. और क्योंकि ऐसे कहा जाता है कि जब मुंबई में जब बारिश होती है तो वो बरसता ही है। It just keeps coming. और वो सिर्फ बरसते ही रहता है। Now, where does all that water come down from? और फिर वो जितने भी पानी होते हैं, फिर वो कहाँ से आते हैं? It's coming down from the cloud. और वो बादल से आते हैं। So, when we look at that phrase, cloud of witnesses, we are talking about several witnesses for the Lord Jesus Christ. और जब यहाँ पर हम पढ़ते हैं कि गवाहों का बादल, तो हम देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह के लिए बहुत सारे गवाह हैं। Now, in our other alternative Sunday services, Pastor has been teaching you about these heroes of faith. और बाकी के जो रविवार होते हैं, उसमें हमारे जो पास्टर वो हमें सिखा रहे हैं जो विश्वास के हीरो है। Now, how many names are there in that one chapter? और वो उस एक अध्याय में कितने नाम है? Now, maybe you can actually do that later. You take a pencil and just mark all the names that are there in chapter 11 of Hebrews. और आप वो बाद में कर सकते हैं कि इब्रानियों के 11 अध्याय में जो भी हीरोज के नाम हैं, आप उसको मार्क कर सकते हो। But the scripture here says, since we are surrounded by so great a cloud of witnesses. और लेकिन वचन यहाँ पर कहता है कि जबकि गवाहों का ऐसा बड़ा बादल हमको घेरे हुए है। There were people who came before us. They have formed a great cloud of witnesses. और वे लोग जो हमसे पहले आ चुके हैं, उन्होंने गवाहों का बादल बना लिया है। And they are today testifying to us that our God is a good God.
और आज वो हमको गवाही देते हैं कि हमारा जो परमेश्वर है वो भला परमेश्वर Let's है। look at that list very quickly. और हम उस सूची को तुरंत ही देखेंगे। In verse 4, we see the name of Abel. और वचन 4 में हम देखते हैं हाबिल का नाम, Verse 5, we read of Enoch. और वचन 5 में हम हनोक का नाम देखते हैं, Verse 7, we read of Noah. और वचन 7 में हम नूह का नाम देखते हैं, In verse 8 onwards, we read about Abraham. और वचन 8 में हम आगे ही इब्राहिम का नाम देखते हैं। Verse 11, we read of Sarah. वचन 11 में हम सारा का नाम देखते हैं, Verse 20, we read of Isaac. और वचन 20 में हम इसहाक का नाम देखते हैं, Verse 21, we read of Jacob. और वचन 21 में हम याकूब का नाम देखते हैं, Verse 22, we read of Joseph. और वचन 22 में हम यूसुफ का नाम देखते हैं। Verse 23, we read of Moses. वचन 23 में हम मूसा का नाम देखते हैं, Verse 31, we read of Rahab. और वचन 23 में हम रेहाब का नाम देखते हैं। And then the writer stops. फिर वहाँ पर जो लेखक है वो रुक जाता है, And this is what he says in verse 32. और फिर ये वो वचन 32 में कहता है, And what more shall I say? For time would fail me to tell of Gideon, Barak, Samson, Jephthah, of David and Samuel and the prophets. फिर वचन 32 में वो लेखक आगे कहता है, अब और क्या कहूँ, क्योंकि समय नहीं रहा कि गिदोन का और बाराक और शिमशोन का और इब्तह का और दाऊद का और शमूएल का और भविष्यवक्ताओं का वर्णन करो। So he says, I don't have the time, I won't be able to create the space to write about all of the names. और फिर वो आगे कहता है कि मैं और आगे क्या लिखूं, उतना समय नहीं होगा कि और इनके बारे में मैं लिख सकूं। Now, why are their names in this particular chapter? और क्यों उनके नाम इस खास अध्याय में है। The lesson for us is that we learn from their lives. और हमें सीखने के लिए यह है कि हम उनके जीवन से सीखते हैं। Not that everything was very smooth for them. और ये नहीं कि उनके लिए सारे चीजें आराम से थी, There were hard times. उनके समय में भी कठिन समय थे, But the truth is that they persevered. लेकिन सच्चाई ये है कि वे लोग दृढ़ता से थामे रहे। What did they go through? और किस परिस्थिति से वो होकर गुजरे, Let's read that. हम उसे पढ़ेंगे। Verse 33 till verse 38. 33 वचन से लेके 38 वचन तक। इन्होंने विश्वास ही के द्वारा राज्य जीते, धर्म के काम किए, प्रतिज्ञा की हुई वस्तुएं प्राप्त की, सिंहों के मुंह बंद किए, आग की ज्वाला को ठंडा किया, तलवार की धार से बच निकले, निर्बलता में बलवंत हुए, लड़ाई में वीर निकले, विदेशियों के फौजों को मार भगाया, स्त्रियों ने अपने मरे हुओं को फिर जीवित पाया, कितने तो मार खाते खाते मर गए और छुटकारा न चाहा, इसलिए कि उत्तम पुनरुत्थान के भागी हो। कई एक ठट्ठों में उड़ाए जाने और कोड़े खाने, वरन बांधे जाने और कैद में पड़ने के द्वारा परखे गए, पथराव किए गए, आरे से चीरे गए, उनकी परीक्षा की गई, तलवार से मारे गए, वे कंगाली में और क्लेश में और दुख भोगते हुए भेड़ों और बकरियों की खाले ओढ़े हुए इधर उधर मारे मारे फिरे, और जंगलों और पहाड़ों और गुफाओं में और पृथ्वी की दरारों में भटकते फिरे, संसार उनके योग्य न था। Now, this is what they went through. और इन परिस्थितियों से वो होकर गुजरे। Are we going through anything like that? क्या इनमें से हम में से कोई इन बातों में गुजर रहा है? Are you being troubled so much because you are a believer in the Lord Jesus Christ? क्या आपको इतनी तकलीफें आई इसलिए क्योंकि आप प्रभु यीशु मसीह में विश्वासी हो? Even if we just take the example of Paul, अगर हम पौलुस का ही सिर्फ उदाहरण ले, he was beaten so many times. और वो उसे बहुत बार मारा गया, He was whipped at least 2 times. और उसे जो मारा गया 2 बार, He was beaten with canes several times. और छड़ियों से उसे बहुत बार मारा गया, Because he was on mission journeys, there were shipwrecks couple of times. और क्योंकि वो मिशन की यात्रा में था तो बहुत बार जो जहाज वो टूटे। Paul would write and say that I have
not eaten so many times. और पौलुस लिखता है और बताता है कि मैंने बहुत बार खाया नहीं है I've not had enough clothing to take care of myself. और मुझे जो वस्त्र नहीं मिले कई बार कि मैं अपने आप को ढाक सकूं। So, if you take each one of these names and think about what they actually went through, तो अगर आप इनमें से हर एक के नामों को ले और सोचिए कि वो कैसी परिस्थिति से हुए हैं, or if you think of that 6 lakh of people or more people who traveled from Egypt up till Israel, up till Canaan, और अगर आप विचार करें वो उन लाखों के बारे में जो लोग मिस्र से कनान में सफ़र किए they traveled, they spent about 40 years in the desert. और रेगिस्तान में उन लोगों ने 40 साल बिताया And from a small age, they grew up. और छोटी उम्र से वो बड़े हुए They never changed their clothes. और उन्होंने कभी भी अपने कपड़ों को नहीं बदला। We can't wear the same set of clothes for more than 2 years. और हम जो एक ही जो कपड़ा है वो 2 साल से ज़्यादा हम नहीं पहन For सकते some of you, it may be smaller. और उनमें से आप में से कुछ लोगों को वो कपड़े छोटे हो जाते होंगे Because we are changing every few months. क्योंकि हम जो हर महीने बदलते रहते हैं। But these people had the same clothes on their back for 40 years. लेकिन इन लोगों के पास जो 40 साल तक वही वस्त्र था उनके बैग में They had the same footwear for 40 years. और वही चप्पल उनके 40 साल तक थे। There are 2 things to learn over there. और वहाँ से हमें 2 चीजें सीखने के लिए Those है clothes did not get worn out. कि वो जो कपड़े हैं वो कभी फटे नहीं Their slippers or sandals never wore out. और उनके जो चप्पल वो कभी टूटे नहीं। And just imagine a 10-year-old boy. और आप विचार करें एक 10 साल के लड़के के विषय He में has clothes that fits him. और उसके पास उसने वो कपड़ा पहना है जो उसे फिट होता है And then for the next 40 years, he's roaming in the desert. और अगले 40 साल वो जंगल में भटक रहा है And from a boy this big, he's now become a proper man. और अब जो वो बच्चा इतना अब वो बड़ा हो गया एक पुरुष बन गया He didn't have to alter his clothes. और उसे जो कपड़े की चुनाव नहीं है। When you think about some of these things, it doesn't actually get into our head. और आप जब इन विषयों के बारे में सोचोगे तो कई बार हमें वो समझ में नहीं आती। All of these people went through what they went through as examples for us. और ये जितने भी लोग हैं वे सारे लोग अपनी जिंदगी जो बिताए हैं वो हमारे लिए उदाहरण के लिए है। There is one lesson for us to learn through all of this. और इन सभी के द्वारा हमें सीखने के लिए एक बात है That's the second lesson for us. और वो हमारे लिए दूसरी बात है सीखना। When life gets hard, जब जिंदगी कठिन हो जाती है remember how others persevered. तो ये याद रखें कि दूसरों ने कैसे दृढ़ता से थामे रहे। When we go through difficult times, जब हम कठिन परिस्थिति से होकर गुजरते हैं maybe because of our faith, और शायद हो सकता है हमारे विश्वास की वजह से maybe because of the situations that are going on in us, और शायद उस वजह से जो परिस्थिति हमारे साथ हो रही है you have to look back at those people who went through much tougher periods than us. तो आपको उन लोगों को देखना है पीछे की तरफ जो लोग हमसे और ज्यादा कठिन परिस्थिति से होकर गुजरे हैं। So that's the second lesson for us. और ये दूसरी बात हमें सीखने के लिए है। Let me take you to the third thing. मैं आपको तीसरी बात बताऊं And that is in the same Hebrews chapter 12, verse 2 and 3. और वही हम देखेंगे इब्रानियों के 12, 1, 2 और 3 में। I'll read that for you. Looking to Jesus, the founder and perfecter of our faith, who for the joy that was set before him endured the cross, despising the shame, and is seated at the right hand of the throne of God. Consider him who endured from sinners such hostility against himself, so that you may not grow weary or faint-hearted. और विश्वास के कर्ता और सिद्ध करने वाले यीशु की ओर ताकते रहे, जिसने उस आनंद के लिए जो उसके आगे धरा था लज्जा की कुछ चिंता न करके क्रूस का दुख सहा और परमेश्वर के सिंहासन की दाहिनी ओर जा बैठा। इसलिए उस पर ध्यान करो जिसने अपने विरोध में पापियों का इतना विरोध सह लिया कि तुम निराश होकर साहस न छोड़ दो। Verse 2 begins by saying, looking to Jesus. और जो वचन 2 वो शुरुआत करता है ये कहते हुए कि यीशु की ओर ताकते रहे। Jesus is our example.
और जो यीशु मसीह वो हमारे लिए उदाहरण है He is the model that we have to follow. और वो हमारे लिए आदर्श है जिसके पीछे हमें चलना है He is the one on whom we have to base our lifestyle. और वो है जिसके ऊपर हमारे जीवन शैली को हमें बनाना है Today, a lot of times we mold or we change our lifestyle based on how the world is changing. और हम ऐसा करते हैं कि हम हमारे जीवन शैली को बदलते हैं हम खुद को बदलते हैं उस तरीके से जिस तरीके से ये दुनिया है But the scripture is very clear for us. लेकिन जो वचन है वो हमारे लिए बहुत ही साफ है We have to look at Jesus as our model. कि हमें यीशु को देखना है हमारे आदर्श के रूप में There is this big talk that keeps happening about compassion. और ये जो तरस इस विषय पर जो बातें होती रहती है What is compassion? तरस क्या है What does it mean to have compassion on somebody else? और ये क्या है कि किसी दूसरे के लिए तरस रखना Let me tell that to you in an example. और मैं आपको वो उदाहरण बताकर बताऊं Just imagine there is somebody whose home you're visiting. और आप विचार करें कि ऐसा कोई है जिसके घर पे आप जा रहे हो They are not telling you anything about themselves. और उनके बारे में वे लोग कुछ नहीं बता रहे हैं आपको But as you're sitting there, you're understanding that they are going through difficulties. लेकिन जब आप वहाँ पर बैठे हैं उनके घर में फिर आप समझ पा रहे हो कि उन्हें क्या कठिनाइयाँ हैं Now, if you're good at understanding this, then you will ask questions, hey, what's happening? और अगर आप समझ में अच्छे हो तो आप उनसे पूछोगे कि क्या हो रहा है And then supposing they open up और समझ लीजिए अगर उन्होंने खुले रीति से बता दिया and they tell you what is happening with them. और उन्होंने आपको बता दिया कि उनके साथ क्या हो रहा है Let's say, for example, they are telling you that we don't have food at home. और उदाहरण के लिए समझ लो उन्होंने कहा कि हमारे पास घर में खाने के लिए नहीं है You are a child of God आप परमेश्वर के संतान हो and you are now in that house. और अभी आप उस घर में हो What can you do? आप क्या कर सकते हो I'll tell you what most of us do. और मैं आपको बताऊंगा कि हम में से अधिकतर लोग क्या करते हैं We tell them, I'll pray for you. और हम उनसे कहते हैं कि मैं आपके लिए प्रार्थना करूंगा Very good. बहुत अच्छा We should pray for them. हम उनके लिए प्रार्थना करना चाहिए Very often we say, I'll pray for you, but we don't pray for them. और कई बार हम उनसे कहते हैं कि हम आपके लिए प्रार्थना करेंगे लेकिन हम उनके लिए प्रार्थना नहीं करते हैं Now, if you are a leader or if you're somebody who does this often, you will say, okay, can I pray for you now? और कई बार जो अगुए अगर आप लोग अगुए हैं और जो लोग ऐसा करते हैं तो फिर आप लोग उनसे कहते होंगे कि मैं अभी आपके लिए प्रार्थना करूंगा Now, you can probably pray for them और शायद से आप उनके लिए प्रार्थना कर सकते हो and you can say, okay, be well. और आप उन्हें कह सकते हो कि ध्यान रखो God will take care of you परमेश्वर आपको संभालेगा and you can leave that house. और आप उस घर को छोड़ते हो But on the other hand, और दूसरी तरफ you can have compassion. और आप जो तरस रख सकते हो You can probably feel what they are feeling. और आप शायद से वो महसूस कर सकते हो जो उनको महसूस हो रहा है Let me take this one step further. और मैं उसे एक कदम आगे बढ़ाकर बताऊं When we know what it is to go without food, you will be able to understand what they are going through. अगर आप कभी बिना खाने के रहे हो तो आप समझ पाओगे कि क्या होता है बिना खाने के होना But if you have never experienced that yourself, लेकिन अगर आपने कभी भी खुद उसे अनुभव नहीं किया है you will never have compassion on that person. तो आप कभी भी उस व्यक्ति के ऊपर तरस नहीं खा Say, पाओगे ठीक है, today they don't have food, tomorrow they will get food. तो आप कहोगे कि हाँ ठीक है आज उन्हें भोजन नहीं है कल मिल जाएगा Today I prayed for them, God will take care of them, tomorrow they will get food. आज मैंने उनके लिए प्रार्थना किया है कल परमेश्वर उन्हें भोजन दे देगा When Jesus left us on this earth, he left a model for us. और जब यीशु मसीह हमें इस धरती पर छोड़कर गए तो उन्होंने हमारे लिए एक आदर्श रखा What did Jesus go through? यीशु मसीह किस चीज से होकर Look गुजरे at verse 2. हम देखेंगे वचन 2 में First of all, it says he endured the cross. और पहले वो बताता है कि क्रूस का दुख सहा What does it mean to endure the cross? क्रूस का दुख सहना इसका मतलब क्या है It is not just some whipping, और ये सिर्फ इतना ही नहीं कि कोई मार रहा है but it is actually being nailed on the cross and being left to die over there. लेकिन ये वास्तव में है कि खीले टोके जाना और उस क्रूस पर मरने के लिए छोड़ दिया He जाना was willing to go through that. और यीशु ने इच्छा रखा इस परिस्थिति से गुजरने के लिए What's the next thing there? फिर आगे क्या हुआ Despising the shame. और लज्जा की कुछ चिंता न की Jesus was shamed on the cross. और यीशु मसीह का क्रूस पे चढ़ाना वो एक लज्जा की बात थी
Today, when somebody says something to us, we immediately get very upset. और जब आज कोई हमें कुछ कहता है तो हम तुरंत ही उदास हो जाते हैं। Let me share with you that I've been in the ministry now for some time. और मैं आपसे बताऊं कि अभी मैं सेवकाई में कुछ समय से हूँ I've heard all kinds of things about me. और मैंने मेरे बारे में बहुत सारी चीजें सुनी है। And I have decided I'm never going to tell them what you're saying is wrong. और मैंने ये निर्णय लिया है कि मैं उनसे कभी भी नहीं कहूंगा कि आप जो कह रहे हो वो गलत है। I know they are wrong, मैं जानता हूँ कि वे लोग गलत है, but if I tell them, they will never understand. लेकिन अगर मैं उनसे कहूंगा तो वे लोग कभी भी नहीं समझेंगे। Normally, when somebody tries to shame us, we react back. और सामान्य रीति से जब कोई हमें बेइज्जत करना चाहता है तो हम उन्हें जो प्रत्युत्तर तुरंत ही दे देते हैं। But Jesus did not react to the shame that he was going through. लेकिन यीशु मसीह ने उस लज्जा को जिससे वो होकर गुजर रहे थे उसके प्रति कोई भी प्रत्युत्तर नहीं दिया। When they had tied his eyes, जब उन्होंने यीशु मसीह के आँख को बांध दिया they hit him on the head और यीशु के सिर पर मारा and they asked, "Now tell us who hit you?" और फिर उन्होंने कहा कि बताओ किसने तुम्हें मारा। Do you think Jesus didn't know who had hit him? क्या आपको लगता है कि यीशु को नहीं मालूम किसने उन्हें मारा? He was God, he knew. वो परमेश्वर है, वो जानता But he है, did not want to answer. लेकिन वो उत्तर नहीं देना He चाहता bore the shame. और उस लज्जा को उसने सह लिया। When he was going through hard times, he went through it quietly. और जब वो कठिन परिस्थिति से होकर गुजार रहा था तो वो शांत रीति से होकर गुजरा। And that verse continues to say, and now he is seated at the right hand of the throne of God. और ये जो वचन आगे कहता है कि परमेश्वर के दाहिनी और जा बैठा। Because of what he endured now, he is at the right hand of God. क्योंकि उसने वो सब सहा, इस वजह से अब वो परमेश्वर के सिंहासन की दाहिनी ओर है। Verse 3 says, he endured from sinners such hostility against himself. और फिर वचन 3 में कहता है कि जिसने अपने विरोध में पापियों का इतना विरोध सह लिया। He was willing to go through everything. और वो इच्छा रखे थे कि सारी चीजों से होकर गुजरे। And he never gave up. और कभी भी उन्होंने हार नहीं माना। He was God. He could have just, escaped from there. और वो परमेश्वर थे, वो चाहते तो ये सारी चीज से बच सकते थे। But his goal was to die for us. लेकिन उनका मकसद था कि वो हमारे लिए मरे। So that's a lesson for us this morning. और ये आज की सुबह हमें सीखने के लिए है। Lesson number 3. तीसरा सीखने के लिए, When life gets hard, जब जिंदगी कठिन होती है remember what Jesus did for you. तो ये याद रखे कि यीशु ने आपके लिए क्या किया है। He went through all of that. ये सारी चीजों से वो होकर गुजरे। So when you go through difficult times, तो जब आप कठिन परिस्थिति से गुजरते हो you remember what Jesus did for you. तो आप याद रखें कि यीशु ने आपके लिए क्या किया It will है never be a equal comparison. और वो कभी भी समान रीति से नहीं होगा। Let me take you to the last passage. और मैं आपको अंतिम वचन में लेकर चलो। That is chapter 12 of Hebrews, verses 12 to 15. और हम देखेंगे इब्रानियों का 12 अध्याय वचन 12 से 15। Now, I'll just read verse 12 and 13 and then verse 15. Therefore, lift your drooping hands and strengthen your weak knees and make straight paths for your feet so that what is lame may not be put out of joint but rather be healed. वचन 12 और 13, इसलिए ढीले हाथों और निर्बल घुटनों को सीधे करो और अपने पाँवों के लिए सीधे मार्ग बनाओ कि लंगड़ा भटक ना जाए पर भला चंगा हो जाए। Now, the scripture here is telling us we need to get back on our feet. और यहाँ पर वचन हमें कहता है कि हमें फिर से अपने पैरों पर खड़े होना है। We may be going through hard times. हम शायद कठिन स्थिति से गुजर रहे We होंगे may be going through hard times physically. और शायद हो सकता है हम शारीरिक रूप से कठिनाइयों में हो We may be going through hard times financially. हो सकता है पैसों में हम कठिनाइयों में हो We may be going through hard times emotionally. हो सकता है भावुक Mentally. रूप से हम जो मानसिक रूप से हम तकलीफों में हो Or we can be going through difficulties spiritually. और शायद हो सकता है कि आत्मिक रूप से हम कठिनाइयों में हो। We are probably being opposed or troubled because of the stand that we are taking for Jesus Christ. और हो सकता है कि हम जो यीशु मसीह के लिए कदम को उठाते हैं, यीशु के लिए जो हम खड़े हैं, उसकी वजह से हम पर जो परीक्षाएं हो सकती है। The scripture here tells us to get on our feet. वचन यहाँ पर कहता है कि हमें फिर से अपने पैरों पर खड़े होना है That's the first thing we have to do. और ये पहली चीज है जो हमें करना है। Then come down to verse 15. फिर हम आते हैं वचन 15 में, See to it that no one fails to obtain the grace of God,
that no root of bitterness springs up and causes trouble, and by it many become defiled. ध्यान से देखते रहो, ऐसा न हो कि कोई परमेश्वर के अनुग्रह से वंचित रह जाए या कोई कड़वी जड़ फूटकर कष्ट दे और उसके द्वारा बहुत से लोग अशुद्ध हो जाए। Now, this is the second part of what we need to do. और ये जो दूसरा भाग है जो हमें करना है। Verses 12 and 13 told us to get back on our feet. और वचन 12 और 13 ने कहा कि हमें फिर से अपने पैरों पर खड़े होना है। Verse 15 says, we need to be those who will ensure that even others don't go through that. और फिर वचन 15 ये बताता है कि हमें ये ध्यान रखना है और निश्चिंत करना है कि दूसरे लोग भी जो कठिनाइयों में ना आ जाए। Because there it says, we are to see to it that no one fails to obtain the grace of Christ. क्योंकि वहाँ पर लिखा है कि ध्यान से देखते रहो, ऐसा न हो कि कोई परमेश्वर के अनुग्रह से वंचित रह जाए। So I myself should not fall down. और मैं खुद गिरना नहीं चाहिए। I myself should not give up. और मैं खुद हार नहीं मानना चाहिए। But at the same time, I should also be helping others that they also will not stay there. और उसी समय में मुझे दूसरों को भी मदद करना है कि वो भी बने रहे। Some of us in the church have that responsibility. और कलीसिया में कुछ लोगों के पास वो जवाबदारी है। Maybe what I'm going through is very difficult. शायद हो सकता है जिससे मैं होकर गुजर रहा हूँ वो बहुत मुश्किल है। Maybe somebody for whom I am responsible may not be going through all of that. और शायद हो सकता है कि जिसके लिए मैं जवाबदार हूँ वो व्यक्ति उस परिस्थिति से ना होकर गुजरे। But I need to come out of my own troubles लेकिन मुझे खुद मेरी जो परेशानियां हैं उससे बाहर निकलना है so that I can encourage that person also to stand up. ताकि उस व्यक्ति को भी मैं उत्तेजना दे सकूं खड़े होने के लिए। Now it will not happen any other way. और ये और किसी तरीके से नहीं हो सकता है। If I am struggling with my own struggles, अगर मैं खुद संघर्ष कर रहा हूँ मेरी तकलीफों से I am not willing to get up, और मैं खुद खड़ा होना नहीं चाहता हूँ but I am telling somebody else, hey, get up. और मैं किसी और को कह रहा हूँ कि खड़े हो जाओ Are be strong in the Lord. और प्रभु में जो सामर्थी बनो Go and do things for the Lord. और जाओ और प्रभु के लिए कामों को करो, It doesn't work. तो ऐसे काम नहीं होता। First, I need to stand up. पहले मुझे खड़े होना है I need to be strong in the faith. और मुझे विश्वास में मजबूत बनना है। And then I need to tell somebody else, okay, you also stand up now. फिर मुझे दूसरों को कहना है कि हाँ अभी तुम भी खड़े हो जाओ। So, those of you who are leaders in the church, और आप में से जो लोग कलीसिया के अगुवे हैं you have responsibility towards the others. तो आपकी जवाबदारी है दूसरों के प्रति। This lesson is specially for you और ये जो शिक्षक है, ये जो सीखने की बात वो आपके लिए भी है and for all of us together. और हम सभी के लिए भी है। When life gets hard, जब जिंदगी कठिन बनती है you can help others persevere. तो आप दूसरों को मदद कर सकते हैं दृढ़ता से थामे रहने के लिए। You can be the one who will encourage that other person to stand up strong in the faith. और आप वो व्यक्ति बन सकते हैं जो दूसरों की मदद करे कि प्रभु में वो खड़े रह सके दृढ़ता से। There were 4 things that we learned this morning. और आज की सुबह हमने 4 बातों को सीखा। First of all, we learned that when life gets hard, और पहला हमने सीखा कि जब जिंदगी कठिन बनती है remember that God is with you. तो आप ये याद रखिए कि परमेश्वर आपके साथ है। Secondly, दूसरा, when life gets hard, जब जिंदगी कठिन हो जाती है remember how others persevered. तो आप ये याद रखिए कि कैसे पहले के लोगों ने दृढ़ता से थामे रहे। Thirdly, तीसरा, when life gets hard, जब जिंदगी कठिन हो जाती है remember what Jesus did for you. तो आप ये याद रखिए कि यीशु ने आपके लिए क्या किया है। And finally, फिर आखिर का, when life gets hard, जब जिंदगी कठिन हो जाती है remember that you can help others persevere. तो आप ये याद रखिए कि आप दूसरों की मदद कर सकते हैं दृढ़ता से थामे रहने में। Whenever things get difficult in your life, और जब कभी आपके जीवन में चीजें कठिन हो जाती है you don't give up. आप हार ना माने You don't say, I'm going to end myself here. और आप ऐसा ना कहे कि मैं अपने आप को यहाँ पर खत्म करने वाला You हूँ। persevere आप दृढ़ता से थामे रहे and you go on. और आप आगे बढ़ते रहे। The opportunity for us to take that stand this morning. और ये जो मौका हमारे लिए है आज की सुबह ये कदम उठाने का। Worship team will lead us in this song और जो आराधना का दल है वो हमें गीत में चलाएंगे, and then we will pray. फिर हम प्रार्थना करेंगे। Prepare your hearts as you sing this song. और जैसे आप इस गीत को गाते हैं तो आप अपने हृदय को तैयार करें। जय मसीह सभी को। जय मसीह। प्रेज द लॉर्ड। Praise the Lord. जिस तरह हमने वचन सुना है अबाउट परसिवियरेंस, हमारे कठिन समय में भी
परमेश्वर हमारा साथ कभी नहीं छोड़ता है, तो क्यों ना हम भी परमेश्वर में थामे रहे, परमेश्वर में बने रहे। क्यों ना हम ये गीत गाए, हो तेरी स्तुति और आराधना। ओ तेरी स्तुति और आराधना करता हूँ मैं तुझसे ये प्रार्थना, महिमा से तेरी तू इस जगह को भर, जो भी तू चाहे तू यहाँ पर कर। Let's bow our heads in prayer. क्यों ना हमारे सिर को हम झुकाए और प्रार्थना करें। Just a moment for you to think of yourself. और कुछ समय आप ले अपने बारे में सोचने के लिए। Yes, we are in difficult times. हाँ, हम कठिन स्थिति में है। Situations around us are not easy. हमारे इर्द गिर्द की परिस्थिति आसान नहीं है। But this is a time for you to get up from whatever situation you are in. लेकिन ये समय आपके लिए है कि आप जो भी परिस्थिति में हैं, आप वहाँ से उठ खड़े हो। Situations are hard, परिस्थितियाँ कठिन है, but you are not supposed to give up लेकिन आपको हार नहीं मानना है, because God is with you. क्योंकि परमेश्वर आपके साथ है। Because there were many other believers before you who persevered. क्योंकि आपसे पहले ऐसे बहुत सारे विश्वासी थे जो दृढ़ता से थामे रहे थे। Because we know of what Jesus did for us. क्योंकि हम जानते हैं कि यीशु ने हमारे लिए क्या किया है। So take that stand this morning तो वो आप कदम को उठाए आज की सुबह and stand up for the Lord. और प्रभु के लिए खड़े हो जाए। Stand up again and run the race. और फिर से आप खड़े हो जाए और दौड़ को दौड़े, Looking to Jesus, यीशु की ओर देखते हुए, who's the author and finisher of our faith. जो हमारी जिंदगी का रखवाला और चलाने वाला है। Pray for yourself at this moment of silence. और इस समय आप अपने आप के लिए प्रार्थना करें। Ask God to bless you, परमेश्वर से मांगे कि वो आपको आशीष दे, help you to stand up again, आपकी मदद करे फिर से खड़े होने के लिए, be spiritually strong again, आत्मिक रूप से फिर से मजबूत होने के लिए, and to help others also. और दूसरों की मदद करने के लिए भी। Our Father God, we thank you for your word.
पिता परमेश्वर, हम आपको धन्यवाद देते हैं आपके वचन के लिए। Yes, Lord, when we go through hard times, we tend to give up. हाँ प्रभु, जब हम कठिन परिस्थिति से जाते हैं तो हम हार देते हैं, But we thank you for your word this morning. लेकिन हम आपको धन्यवाद देते हैं आज की सुबह इस वचन के लिए। When things get hard, let us not give up. और जब चीजें कठिन हो जाती है तो हमें हार ना मानने दें। Help us, Lord, to be able to stand up all over again. प्रभु हमें मदद करे कि हम फिर से खड़े हो जाए। Thank you, Lord, for the fact that you are with us. प्रभु धन्यवाद देते हैं इस सच्चाई के लिए कि आप हमारे साथ हैं। Thank you that we have a cloud of witnesses who tell us to stand up. प्रभु धन्यवाद देते हैं उन गवाहों के बादल के लिए जो हमें कहते हैं कि हम खड़े हो जाए। Thank you for all that you did for us on the cross. प्रभु धन्यवाद देते हैं जो कुछ उस क्रूस पर आपने हमारे लिए किया है। So help us, Lord, to stand up again, तो प्रभु आप हमें मदद कर ताकि हम फिर से उठ खड़े हो, to be willing to fight all over again. कि हम इच्छा रखें फिर से लड़ाई करने के लिए। Help us, Lord, also to help others to stand up. प्रभु हमारी मदद कर ताकि हम दूसरों को भी मदद कर सके खड़े होने। We want to pray at this time that you would help us to persevere. इस समय हम आपसे प्रार्थना करते हैं कि आप हमें दृढ़ता से थामे रहने के लिए मदद करें। Make us strong in your faith, Lord. आपके विश्वास में हमें मजबूत बना प्रभु। Thank you again for your word. फिर से धन्यवाद देते हैं आपके वचन के लिए। Thank you for the Holy Spirit that has taught us this morning. धन्यवाद देते हैं पवित्र आत्मा के लिए जिसने आज की सुबह हमें सिखाया। Continue to lead us this morning आज की सुबह लगातार आप हमें चलाए and teach us as we think about what we've heard this morning. और आप हमें सिखाए जैसे आज की सुबह हम इस विषय पर सोचते हैं। Commit our lives into your hands. हमारे जीवन को आपके हाथों में देते हैं। Thank you again for blessing us with your word. धन्यवाद देते हैं फिर से आपके वचन से हमें आशीषित करने। Thank you now for hearing and answering us. धन्यवाद देते हैं हमारी सुनने और हमारे प्रार्थना का उत्तर देने, We pray all this in the matchless name of our Lord and Savior Jesus Christ. क्योंकि हम ये सारी प्रार्थना करते हैं हमारे शक्तिशाली प्रभु यीशु मसीह के नाम से। Amen. आमीन। May God bless you परमेश्वर आपको आशीष दे and may God lead you और परमेश्वर आपको चलाए so that you will stand strong for Him always. ताकि उसके लिए आप हमेशा मजबूती से खड़े हो सके। Amen. आमीन।